Bismillahirrahmanirrahim. Now, today we will go with our second lecture, which is investigation and management of facial trauma. Introduction. Injuries to the head and neck frequently involve the airway or major vessels. So, the initial assessment therefore should begin with primary survey following ATLS protocol. So once the patient is stabilized, the secondary survey begins and diagnosis of the other injuries can be made. So if we talk about the aims and objectives, the goals in managing facial trauma are restoring anatomy and eliminating the deformity, restoring bite, the masticatory abilities of the patient, restoring function including nasal airflow and ocular function, minimizing the morbidity and the early return to the function. Usually we first start with the investigation and the investigation, the laboratory investigation studies, they are the first to start with. Laboratory studies should be ordered based on the patient's medical history, current condition and planned surgical procedure. So when we talk about the radiographic studies in investigation, there are two types of the radiographic studies, the plain radiography and the specialized imaging. So once again we start with the lower third facial skeleton, that is mandible. The following types of radiographs are helpful in diagnosis of the mandible fracture. First two types are of the plain radiographs and the third one is the computed tomography. The first one is known as orthopentomogram or other words में commonly इसको कहते हैं OPG and second one is PA mandible view and third one is computed tomography. So, in mandible fracture, this is an example of orthopentomogram or OPG. You can see clearly in the middle of the chin area, in between incisor teeth, there is a discontinuity in the bone. So, this is the fracture of the anterior region of the mandible. Other plane X-ray is a PA mandible view. Here it is clearly visible that if you see the left side of the mandible, you will find a discontinuity in the angle region. So this is the fracture of the angle region of the mandible. These two X-rays are of the CT scan और CT scan का ये coronal view है. On the right side, if you compare the right side with the left side, on the right side there is the bending of the bone of the condyle region after the fracture. Finally, this is a X-ray of a 3D view जिसके अंदर हमें clearly पैरासिलिस का फ्रैक्चर नजर आ रहा है यानी मिड लाइन से थोड़ा हटके बिटवीन रीजन ऑफ द canine and the premolar region. So now how will we manage the mandible fractures? Mandible fractures are the most commonly treated, they can be most commonly treated by close reduction with maxillomandibular fixation और इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन. क्या होता है क्लोज रिडक्शन के अंदर जिसको हम एमएमएफ या आईएमएफ कहते हैं, इसके अंदर अपर टीथ को लो टीथ के साथ हम टाई कर देते हैं, बांध देते हैं एक प्रॉपर रिलेशन के अंदर जिसको हम क्लास वन रिलेशन ऑफ टूथ कहते हैं. अदर जो तरीका है इनको ट्रीट करने का मेंटल फ्रैक्चर्स को, दैट इज ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन. So what will be the indications of close reduction? क्या indications होंगी? जो fractures non displaced हैं, incomplete fractures हैं, minimally displaced fractures हैं, reproducible bite है कि हम अपने patients को कि bite को reproduce कर सकते हैं easily और
पेशेंट को कोई वैसी मेडिकल इलनेस या इंजरी है जिसकी वजह से हम पेशेंट को जीए में नहीं लेके जा सकते। ये सारी इंडिकेशंस हैं फॉर द क्लोज रिडक्शन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द क्लोज रिडक्शन। हमने क्या किया है कि हमने ऊपर एक आर्च बार लगाई है और नीचे हमने एक आर्च बार लगाई है टीथ के अंदर, और इन दोनों के आर्च बार की मदद से हमने टीथ को अक्लूजन के अंदर मिला के हमने इनको टाई करके छोड़ दिया फॉर 4 वीक्स। फर्स्ट पिक्चर के अंदर हमने इलास्टिक्स यूज किए और सेकंड इसके अंदर मॉडल के ऊपर दिखाया गया, इसके अंदर हमने अपर जॉ को लोअर जॉ के साथ वाइस के साथ हमने बांध के हमने क्लूजन को अचीव किया। दिस इज नोन एज IMF इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन और MMF मैक्सिलोमैंडिबुलर फिक्सेशन। ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन इंडिकेशंस क्या हैं? जो बहुत सेवरली डिस्प्लेस फ्रैक्चर्स हैं, मोर देन वन फ्रैक्चर इन दी जॉ है या इन दी मैंडिबल है, अनएबल टू अचीव बाइट विद क्लोज रिडक्शन, हम बाइट को अचीव ही नहीं कर पा रहे विद क्लोज रिडक्शन। इन केसेस के अंदर हम ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन के अंदर हम ये स्क्रूज एंड प्लेट्स हम यूज करेंगे टू फिक्स दी फ्रैक्चर्स। ये दो एग्जांपल्स हैं ऑफ ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन में। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पिक्चर के अंदर दो स्ट्रेट प्लेट्स यूज की हैं हमने टू फिक्स दी फ्रैक्चर, जबकि सेकंड प्लेट के अंदर जिसके अंदर आपकी मेंटल नर्व भी नजर आ रही है, हमने एक स्ट्रेट प्लेट और एक एक्स प्लेट को यूज किया है। Now we will talk about the middle third facial fractures, सेम जिनको हमने पहले भी हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा था, मैक्सिला एंड दी जाइगोमा। इनकी इन्वेस्टिगेशंस के बाद में बात करेंगे मिडिल फेस की, तो मोस्ट कॉमनली यूज एक्से यूज होता है दैट इज नोन एज पैरानेजल साइनस व्यू। इसको हम पीनस व्यू या वाटर्स व्यू भी कहते हैं। इसका एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं ऑसिपिटो मेंटल व्यू। अदर एक्सरे प्लेन है सबमेंटो वर्टेक्स व्यू, और कंप्यूटर टोमोग्राफी हमारे इंक्लूड होता है हमारे स्पेशलाइज्ड इमेजिंग के अंदर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पैरानेजल साइनस व्यू। इसमें लेफ्ट साइड पे आप देखें तो एरो इंडिकेट कर रहा है ब्रेक इन दी इंफ्रा ऑर्बिटल रीजन एंड दी सुपीरियर साइनस वॉल का फ्रैक्चर। सेकेंड जो एक्सरे है दैट इज SMV या सबमेंटो वर्टेक्स व्यू है। इसमें लेफ्ट साइड पे देखें कि आपकी आर्च जो है जाइगोमेटिक बोन की जो आर्च है वो फ्रैक्चर हुई है। फर्स्ट सेक्शन में मैंने बताया था कि यही फ्रैक्चर जो होता है ये इट इज एन इंडिकेटिव ऑफ लिमिटेड माउथ ओपनिंग ऑफ द जॉ, तो ये हिंडर करता है हमारी नॉर्मल जॉ की ओपनिंग को भी। थर्ड जो एक्सरे है दिस इज एन एक्सियल CT स्कैन जिसमें एरोज इंडिकेट कर रहे हैं राइट साइड पे आपकी सुपीरियर और इंफीरियर आपकी मैक्सिलरी वॉल के फ्रैक्चर है और साथ ही साथ बॉडी ऑफ द जाइगोमा का फ्रैक्चर है। नेक्स्ट एक्सरे में क्रोनियल CT स्कैन का व्यू है। इसके अंदर बड़ा आप अगर क्लियरली देखें तो राइट साइड पे आपको ये ब्लैक एरिया नजर आ रहा होगा ऑर्बिट्स के नीचे, दिस इज अ मैक्सिलरी साइनस। जो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे फ्रैक्चर होने के बाद क्या हुआ है कि ना सिर्फ ऑर्बिट की वॉल जो हुई है उसके अंदर ब्रेक आया है, बल्कि नीचे साइनस सारा ब्लड की वजह से और ऑर्बिटल कंटेंट्स जो ड्रॉप आउट हो गए हैं उसकी वजह से, सारी इसकी हर्निएशन की वजह से सारी वहाँ पे जो हो गई है इसकी ऑब्लिट्रेशन हो गई है। तो क्लियरली आप दोनों साइड पे डिफरेंसेस देख सकते हैं। फाइनली दिस इज अ 3D CT स्कैन ऑफ द मिड फेस फ्रैक्चर। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका लीफोट 1 लेवल जो मैंने बताया था कि अबव द लेवल ऑफ द टीथ, अबव द लेवल ऑफ द मैक्सिलरी टीथ होता है और दोनों रिम भी टूटे हुए हैं। इट इज एन इंडिकेटिव ऑफ द लीफोट 2 एंड लीफोट 1 फ्रैक्चर। So if we talk about the management of the middle third fractures, they are treated by the open reduction and the internal fixation. इस पिक्चर के अंदर there are different types of plates and screws which are used for open reduction and internal fixation of the midface fracture.
तो मैंडिबल था उसके अंदर यूजली हम स्ट्रेट या एक्स 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 शेप की प्लेट यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर एल शेप भी प्लेट्स हैं, वाई शेप भी प्लेट्स हैं, तो डिफरेंट एच एच टाइप भी प्लेट्स हैं, तो डिफरेंट टाइप की प्लेट्स होती हैं आपके मिड फेस के अंदर यूज होती हैं. This is an example of the 3-point fixation of a zygomatic bone fracture. सबसे ऊपर आप देखें तो there is a fixation of the frontozygomatic suture. उसे नीचे आए तो दी इंफॉर्बिटल रिम को फिक्स किया हुआ टू दी प्लेट, और फाइनली आपने थर्ड जो एल शेप प्लेट है दैट इज अ फिक्सेशन ऑफ द zygomatic-maxillary area. This is the picture of fixation of the leaf foot 1, 2 and 3 fractures with the help of the mini plates. इसमें जो इंपॉर्टेंट एक चीज आप और देखेंगे, लेफ्ट साइड के ऊपर बोन ग्राफ्ट यूज किया गया है. इसलिए यूज किया गया होगा कि वहां पे डिफेक्ट जो होगा बहुत बड़ा होगा, उसको हम सिर्फ प्लेट्स की वजह से फिक्स नहीं कर सकते, तो हमने वहां पे बोन ग्राफ्ट लिया. यूजली ऐसा बोन ग्राफ्ट हम इलियक बोन से लेते हैं. Now finally we will again talk about the upper third facial fracture जिसके अंदर frontal bone आती है. आपको याद होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अपर थर्ड के जो फेशियल फ्रैक्चर्स होते हैं उसके टेबल्स पर डिपेंड करता है कि इंटीरियर टेबल है, पोस्टीरियर टेबल है, कि दोनों टेबल है. तो बेसिकली यूजली प्लेन रेडियोग्राफ हम यूज नहीं करते फ्रंटल बोन के फ्रैक्चर्स के लिए. इसके अंदर हम सीटी स्कैन यूज करते हैं. सीटी स्कैन के अंदर भी हम दो व्यूज जो होते हैं मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, दैट इज एक्सियल एंड दी 3D व्यू. दिस इज एक्सियल सीटी स्कैन जो इंडिकेट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर टेबल फ्रैक्चर को. आप देख सकते हैं कि पोस्टीरियर टेबल जो है फ्रंटल साइंस का दैट इज इंटैक्ट, whereas in the other axial CT scan both the tables are fractured. इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों देखेंगे तो उनकी दोनों के अंदर डिसकंटिन्यूटी जो हुई है इसकी डिस्टर्ब हुई है. दिस इज ए थर्ड रेडियोग्राफ विच इज ऑफ 3D CT स्कैन जिसके अंदर क्लियरली आप एक डिप्रेशन देख सकते हैं, डिप्रेस फ्रंटल बोन को आप एलोकेट कर सकते हैं. इसकी मैनेजमेंट के अंदर भी आप बोन प्लेट्स यूज करते हैं. अगेन आप देख सकते हैं एक्सियल सीटी स्कैन जिसके अंदर फ्रंटल और इंटीरियर पोस्टीरियर दोनों टेबल फ्रैक्चर है, और उसको हमने स्टेबलाइज किया विद द हेल्प ऑफ अ लॉन्ग मिनी प्लेट एंड दी वन एक्स टाइप प्लेट. अच्छा, क्या होता है कि जो फ्रंटल फ्रैक्चर्स होते हैं समटाइम इनको हम कवर अप नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ द मिनी प्लेट्स, और वो जो आपका डिप्रेशन भी होता है फ्रंटल बोन पे वो बहुत ऑब्वियस होता है. तो उन डिप्रेशन को उसको आप कॉस्मेटिकली बेहतर बनाने के लिए आप क्या यूज करते हैं, यू यूज दिस टाइप ऑफ मैश. इसको हम टाइटेनियम मैश कहते हैं, पूरी जाली होती है, और ये इसको भी विद द हेल्प ऑफ स्क्रूज इसको हम फिक्स करते हैं, तो बड़ा अच्छा ये कैमोफ्लेज कर देती है आपके पूरे डिफेक्ट को. This is an anatomic reconstruction of frontal contour with the titanium mesh. Thank you very much for your attention. Allah Hafiz.